Hello students, today we will do definite integral and fundamental theorems of calculus. Students, what is definite integral? Definite integral is defined as the area of the region bounded by the curve y equal to fx, the ordinates x equal to a and x equal to b and x-axis. Like बच्चे, we know that this is a integral symbol and a is a lower limit, b is a upper limit of integration, fx is a integrand जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, dx is a variable of integration. इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास ना तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना ही अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. तो जब हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक फंक्शन. जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, एक फंक्शन की फॉर्म में आता है. लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूजिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आती है, यूनिक नंबर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल. Definite integral is used to solve the area under the curve. इंटीग्रल a to b fx ds. अब हमें नोटेशन तो पता चल गई कि कैसे इसको डिफाइन करना है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि हमने इसको हाउ टू इवेल्युएट द इंटीग्रल. टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, फर्स्टली आई टेल यू व्हाट इज इंटीग्रल a to b fx dx. We defined it as the area of the region bounded by the curve. ये कर्व होगी y इक्वल टू एफ एक्स, जिसको हमने इंटीग्रेट करना, वो क्या है, कर्व. कौन कौन से ऑर्डिनेट के अंडर कर रहे हैं हम, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड x एक्सिस. Like see in this figure, here is given one curve, पिंक कलर की एक कर्व दी हुई है, y इक्वल टू एफ टी या y इक्वल टू एफ एक्स डोंट and x equal to a, जो ये line है ना x equal to a, this is the ordinate, and here equal to x equal to b is a y ordinate. Now we have to integrate this curve from a to b and x-axis along the x-axis. That means ये total curve को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. जो ये एरिया अंडर द कर्व है, दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल. But if we want to find out the integral a to x, बच्चे x हो गया एक मूविंग पॉइंट. अगर हम x को इंक्रीज कर देंगे तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अगर जहां तक ले जाएंगे उससे आगे इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स एरिया डिपेंड्स ऑन द अपर लिमिट. अपर लिमिट हियर इज नॉट कांस्टेंट. If upper limit is variable, then we denote area as a area function ax, because here upper limit is not constant, it is a variable. So ax is a area function, integral a to x fx dx. Why? Because here x is not a constant, x is a variable. Using this area function, we will define the first fundamental theorem of calculus. क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का हमें मेथड भी आना चाहिए. वन मेथड इज लिमिट ऑफ सम and second method is fundamental theorem of calculus. By using the second fundamental theorem of calculus, we will evaluate definite integral. Fundamental theorem of calculus was given by Isaac Perron, and it gives an inverse relationship between differentiation and integration. First fundamental theorem of integral calculus. This is based on the area function.
हमने एरिया फंक्शन को वहां पे ax डिनोट किया था, सपोज करो यहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं fx. fx is the area function integral because here x is a variable limit. And we assume that ft is continuous and differentiable. जो ये ft है, this is यहाँ पे ये arrow move कर रहा है, this is continuous and differentiable. Additionally, it is an indefinite integral of fx. Then f dash x is always equal to f dash x is equal to fx. That is, the derivative of area function is equal to the function fx. Derivative of integral, derivative of area function is equal to the derivative of integral, derivative of integral. But here in this exercise we will use only the second fundamental theorem of integral calculus. बच्चे आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, so we are doing only the statements. सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या बता रही है कि अगर जो ये फंक्शन है fx, if it is continuous at every point of ab, and if f is an antiderivative of f, that means if f capital F एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ है, सपोज कर लो जब हम भी कोई बिना इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इनडेफिनेट को मतलब अगर हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट ना हो तो हमारे पास कोई फंक्शन आता है, वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल. दैट मीन्स वो फंक्शन को हमने क्या डिनोट कर लिया, एफ एक्स. तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, जो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करके फंक्शन आया है उसमें हमने अपर लिमिट की वैल्यू पुट करके माइनस लोअर लिमिट. दिस टेल्स अस द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. फर्स्टली इवैल्यूएट द indefinite integral, then put the value of upper limit in that function minus lower limit in that function. These are the steps to calculate the integral a to b fx dx. This theorem is very useful because it gives us the method of calculating the definite integral more easily. Because if we calculate it with the help of limit of sum, this is very lengthy process, so it is very useful. This strengthens the relationship between the integration and differentiation. Now here I am telling you how to solve the question. बच्चे आपको ये दिया होगा इंटीग्रल a to b, what is a lower limit, what is b upper limit. हमने किसको इंटीग्रेट करना है, किसी फंक्शन को, और जो फंक्शन इंटीग्रेट करना है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उस क्लोज्ड इंटरवल a to b के. मोस्टली आपके बुक में 99 पॉइंट समथिंग हर एक मतलब जनरली फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस ही होगा. आपको जस्ट क्या फाइंड आउट करना होगा, इंटीग्रेट. सबसे पहले आप इनडेफिनिट इंटीग्रल आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करो. जब आप फाइंड आउट करोगे आपके पास कोई ना कोई फंक्शन आएगा, लेट देम डिनोट इट बाय कैपिटल एफ एक्स. वी विल नॉट राइट हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट. व्हाई, बिकॉज इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब हम लिखेंगे, जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. so there is no need to keep the integration constant. Now afterwards we will put the value upper limit and lower limit in fx, then we will subtract these two functions by after putting the upper limit and lower limit. मतलब पहले आप fx फाइंड आउट कर लो, fx फाइंड आउट कर लिया, जब आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई उसमें सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करो, जहां जहां पे भी x होगा वहां वहां पे b पुट कर दो, उसके बाद माइनस देन लोअर लिमिट पुट कर दो, जो भी आपके पास एक नंबर आएगा दैट विल बी द यूनिक वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. अब देखो कैसे करना है आपने.
y इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 3x³ + 1 dx। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिमिट्स को भूल जाओ। वी हैव द इनडेफिनेट इंटीग्रल x³ + 1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? x³ की इंटीग्रेशन क्या होती है? x⁴/4 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x। अब हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में किया था कि जब हमारे पास फंक्शन आ जाए उसके बाद हमने इसमें अपर लिमिट को ऊपर लिखो, लोअर लिमिट -1 नीचे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 3 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दियो। उसके बाद हमने क्या डालना होता है? माइनस साइन। देन वी हैव टू पुट हियर लोअर लिमिट कितना है? -1। जहां जहां -1 की पावर 4 1 ही हो गया बाय 4, यहाँ पे -1। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आ गया? 24। दिस इज द यूनिक वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। In the same way, you can solve these types of integrals. Firstly, solve indefinite integral, then put the upper limit minus lower limit. And these are the questions from the exercise 7.9. Like here, we have integral 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx. Firstly, इस इंटीग्रल को, सिंपल इंटीग्रल को सॉल्व करो, इनडेफिनेट इंटीग्रल को। लाइक हियर आई एम सॉल्विंग। इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया हमारे पास एक फंक्शन आ गया, उसको हमने क्या सपोज कर लिया? कैपिटल fx। अब उसके बाद हमने क्या करना था? अपर लिमिट f2 माइनस लोअर लिमिट f1। जहां जहां पे भी x है पहले उसमें 2 पुट कर दो, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में लिख के माइनस, देन पुट -1 पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा। Like here one more example, integral लिमिट्स हैं π/6 to π/4 cosecant x dx। अब cosecant x का इंटीग्रल सॉल्व करो, सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रल। आपको पता है क्या वैल्यू होती है? लॉग मोड cosecant x माइनस cot x। अब इस जो फंक्शन आ गया हमारे पास, आगे तो हम यहीं पे छोड़ देते थे, लेकिन अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम इसको क्या सपोज कर लेंगे? कैपिटल fx। उसके बाद हमने क्या करना है? इसको क्या मान लेना है? f π/4 मतलब अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। f ऑफ π/4 मतलब जहां पे भी x है उसमें वहां पे पहले अपर लिमिट पुट कर दो माइनस लोअर लिमिट, जो आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। बच्चे, इन दिस वे यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज 7.9। थैंक यू।